I know it's very difficult to come out of that exhibition and start writing and publish your own books. It's a dream project for each and every individual, those who are willing and those who are looking to publish their own book. आज मैं आपको इस वीडियो में 10 ऐसे स्टेप बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके मैंने रिसेंटली फर्स्ट बुक को राइट किया और मैंने सक्सेसफुली उसको पब्लिश किया और आई बिकम अमेज़न बेस्ट सेलर एज वेल। सो स्टे ट्यून, इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी बुक आप लिखें और उसको सक्सेसफुली पब्लिश करें। आज मैं इस वीडियो में आपको ये सारा टिप्स बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप भी अपना बुक लिख सकते हैं और उसको पब्लिश कर सकते हैं with an minimum resources. So without wasting any more time, let's get started. My name is Funny. I do create these sort of videos to help each and every individual, those who really wanted to explore themselves in this new digital era, and I help those people who really wanted to explore themselves and wanted to identify and find their true potential. So let's get started. So let me tell you my example that how I started writing. I'm a non-writer guy, but somehow it was in back of my mind that I will definitely write and definitely publish a book in my lifetime. But I didn't ever know that I can publish a book in a short period of time. Every year I used to keep my resolution that this year I'm going to write my book and I'm going to publish my book. But इस बार जब 2020 का जनवरी मंथ में मैंने ये रिजोल्यूशन रखा कि इस बार आई एम गोइंग टू राइट माई बुक एंड आई एम गोइंग टू पब्लिश माई बुक, that day onwards I have started writing my book. The way the lockdown has given me the boost up to my work and I have completed my writing within the span of 6 to 7 months. And successfully recently I have published that book on Amazon and I have become bestseller author Amazon as well. So if you are interested to read my book, then I'll give in description right down below. You can follow the link and you can go to the Amazon. You can check it out my book. And if you wanted to explore digital marketing, then definitely you need to read that book. आपको वो book पढ़ेंगे तो आपको basic each and everything आपको समझ में आएगा. Then you can go ahead and you can get your copy from Amazon. So let's get started with the main topics of today's video. Like I'm going to give you a 10 steps formula. If you will follow that formula, then definitely you will also be able to publish your book and you will be become an author of your own very first book. In my list, first step is to identify your idea or your topic. आप किस विषय पे आप अपना बुक लिखना चाहते हैं, आपको वो पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या टॉपिक आपका होने वाला है। आपको उस टॉपिक के बारे में क्लियरिटी होनी जरूरी है। मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो आपको जो भी जिस भी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, मैं सजेस्ट करता हूं उसी टॉपिक को आपको चूज करना चाहिए, बिकॉज यू नो अबाउट दैट फील्ड वेरी वेल, बिकॉज यू हैव स्पेंड सम सॉर्ट ऑफ टाइम इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। अगर आपने किसी भी सेक्टर में अगर कुछ भी काम किया है, एक टेन्योर तक काम किया है, तो उस सेक्टर को आप डीपली जानते हो। अगर आपका एक्सपीरियंस मान लीजिए आईटी सेक्टर में है तो आपको ऐसा टॉपिक चुनना चाहिए या ऐसा आइडिया लेना चाहिए जो कि आईटी से रिलेटेड हो। अगर आप कोई भी जॉब मार्केटिंग में करते हैं या आपका एक्सपीरियंस मार्केटिंग में है तो आपको उस रिलेटेड टॉपिक को चुनना चाहिए या आइडिया को लेना चाहिए ताकि आपको उस चीज़ में क्लियरिटी मिले और आप अच्छे से उस चीज़ को लिख पाओ। जो भी आपका एक्सपीरियंस है उस चीज़ में आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। Then my second step to write your book is research. It's good to have a good knowledge about the topic, but you need to research a lot about your topic as well. आपको आपका जो भी टॉपिक और आपने आइडिया चूज किया है उसके बारे में each and everything आपको पता होना चाहिए। Once you will do the research, the groundwork, you will get to know more about your topic. आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप डीप जा सकते हैं। आप जितना ज़्यादा हो सके उस चीज़ को एक्सप्लोर करके उसके बारे में जितना हो सके आप उसका इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करना चाहिए। आपको एक्सप्लोर करना चाहिए नॉट ओनली थ्रू इंटरनेट, इफ यू कैन गो ऑफलाइन ऑल्सो, देन यू कैन मीट पीपल, यू कैन गो टू द डिफरेंट कॉर्पोरेट्स, रीड बुक रिलेटेड टू योर टॉपिक, यू कैन रीड इट आउट एंड यू कैन गेन मोर नॉलेज अबाउट योर टॉपिक. Then you need to move to the third step. The third step is outline of your topic. Now what is outline of your topic?
जो भी आपने टॉपिक या आइडिया चूज किया है उसका टेबल ऑफ कंटेंट आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करना चाहिए और लिखना चाहिए कि आपके आइडिया में से आप कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आप क्लियरली अपने बुक को लिखना चाहोगे। आपको यह क्लियरिटी रखना जरूरी है कि आप कौन कौन से टॉपिक उस आइडिया में या आपका जो भी टॉपिक है, जो भी एरिया है, उसमें आप कवर करना चाहोगे आपके बुक के अंदर। उसका आपको क्लियरली टेबल ऑफ कंटेंट एक बना करके रेडी रखना चाहिए, ताकि जब भी आप लिखने के लिए बैठो तो आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिले कि आप कौन कौन से टॉपिक के ऊपर अपने बुक को लिखना चाहते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके बुक में इंक्लूड करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है एज एन ऑथर कि आप किस तरीके से डीप नॉलेज आप वहां पर प्रोवाइड करना चाहते हो या बेसिक प्रोवाइड करना चाहते हो। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है एज एन ऑथर व्हाटएवर यू वांटेड टू राइट ऑन योर बुक। बट बिफोर राइटिंग यू नीड टू मेक श्योर आपका जो भी टेबल ऑफ कंटेंट है, टॉपिक से, उसको क्लियरली आपको आइडेंटिफाई करके रहना चाहिए, ताकि आपको क्लियर रोड मैप मिले आपके राइटिंग जर्नी। Now my next fourth step is the timeline. टाइमलाइन बहुत जरूरी होता है आपके राइटिंग जर्नी के। विदाउट टाइमलाइन यू वॉन्ट एबल टू कंप्लीट योर बुक ऑन टाइम। सो आपका बुक लिखने का स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि मैं इस डेट से लेकर के विद इन दिस मंथ और विद इन अ ईयर आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस राइटिंग वर्क। सो वो टाइमलाइन आपको फॉलो करना चाहिए और आपके साथ, खुद के साथ आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो बुक लिखने का टाइमलाइन आपको मीट करना है। सपोज मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं 6 महीने के अंदर या मे बी 3 मंथ्स के अंदर आप अपना राइटिंग वर्क कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसी तरह से आपको आपका 24 आवर्स में से आपका टाइम को एलोकेट करना पड़ेगा सो दैट यू कैन कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। नाउ द 5th step is the writing process. But before going to the writing process, what you need to do, you need to find out a quiet place. क्योंकि जब भी आप लिखने के लिए बैठो तो आपको किसी तरीके का डिस्टर्बेंस वहां पर ना हो, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि वहां पर कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, आप सारा कुछ चीज अवेलेबल रखे और आप मेक श्योर करें कि आप एक क्वाइट और आइसोलेटेड प्लेस में जा करके लिखे। क्योंकि एक बार मोमेंटम आता है लिखने के लिए तो आपको आपके आइडिया जनरेट्स होते हैं, जितने भी आपके थॉट्स हैं उसको पेन डाउन करना उसी समय में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सारे थॉट्स उस समय से अगर हट जाएंगे तो फिर से वो थॉट्स को लाना मुश्किल होता है। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट you are keeping yourself isolated in somewhere and you can start writing on your project. Once you start writing, don't look back and don't start editing your content whatever you have written. Keep writing till the time you do not finish it, or till the time you do not finish one chapter or one whole topic, till that time do not edit your content. फिर जितने भी माइंड में आइडिया आ रहे हैं उस चीज़ को फिर से कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब आप राइटिंग शुरू करें तो उसी में फोकस रखें, क्योंकि आप जो भी लिख रहे हैं उसको तभी एडिट करने की कोशिश ना करें जब आप वो कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आपको उसको एडिट करने का प्रोसेस स्टार्ट करें। Having said that, next step is editing of your whole content. आप एडिट करने के लिए इनिशियली खुद से ही पहला जो भी आपने ड्राफ्ट लिखा है, जब आपका राइटिंग कंप्लीट हो जाता है, जब आपका सारा कुछ मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाता है, देन यू नीड टू एडिट योर होल कंटेंट। मैंने जब स्टार्ट किया था तो आई हैव फाउंड सेवरल एरर्स इन माय राइटिंग प्रोजेक्ट, but I have managed to edit that content. I have asked my wife to edit my whole content. अगर आप चाहे तो आप अपने किसी फ्रेंड को या किसी एडिटर को हायर कर सकते हैं और आपने जो भी मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है उसको एडिट करने के लिए आप उन लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। It's all depend on you whether you wanted to pay some money to your editor or you can start editing by yourself, or you can ask in your family or friends or whomever you would prefer to edit your whole content. आप खुद से वो चूज कर सकते हैं किससे आप अपना जो भी स्क्रिप्ट आपने लिखा हुआ है उसको आप एडिट करवाना चाहते हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है तो बार बार आप उस चीज़ को खुद से एडिट करें और किसी और से भी एडिट करवाएं, ताकि आप जो भी लिख रहे हैं उसको परफेक्टली आप एक स्ट्रक्चर वे में उसको कंप्लीट कर पाएं। यहाँ पर आप एक पेड सर्विसेज ग्रामरली का भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल एंड हेल्पफुल टूल है। अगर ग्रामरली आप इंस्टॉल करते हैं और उस पेड सर्विसेज लेते हैं तो वहाँ से भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी।
Then we move to the seventh step of this process, which is designing your cover of your book. This is a very important part of your writing journey and publishing journey of your book. बिकॉज जो कवर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके बुक के लिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका जो कवर है वो अट्रैक्टिव रहेगा तो डेफिनेटली बायर विल गोइंग टू बाय योर बुक। आपके बुक कवर को डिजाइन करने के लिए आप ग्राफिक डिजाइनर का भी हेल्प ले सकते हो। अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है तो ये काम आप खुद से भी कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल टूल है जिसके थ्रू आप अपने बुक के फ्रंट एंड बैक साइड कवर के आप खुद से डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन करने के लिए पहले तो आपको क्लियर रखना है कि जो भी आपका टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट है, उसका हेडलाइन, आपका बुक का नेम क्लियरली वहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। प्रिफरेबली मैक्सिमम ऑथर्स यही करते हैं, अपना खुद का इमेज वहाँ पर प्रिंट करवाते हैं, लेकिन आप चाहे तो ऐसा नहीं भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे बुक में मैंने अपने इमेज को प्रिंट नहीं करवाया। Now we move to the eighth step of this process, which is designing part of your book. जो भी आपने लिखा हुआ है उस चीज को, लेकिन उसको रीडर फ्रेंडली बनाना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ही आप कवर को डिजाइन करेंगे, आपके बुक के अंदर के कंटेंट को भी रीडर के फ्रेंडली और रीडर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप वहाँ पर इंफोग्राफिक्स डाल सकते हैं, ग्राफ्स डाल सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, बहुत सारे चीजें वहां पर इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई भी यूजर या रीडर उसको रीड कर रहा है तो उसको आसानी से आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैसेज आपके बुक के थ्रू देना चाह रहे हैं, उसको क्लियरली उसको समझ में आए और आपका जो मैसेज है वो उसको एडॉप्ट कर पाए। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी चीज आप डिजाइन कर रहे हैं उसका प्रॉपर इलस्ट्रेशन हो गया हो, डिजाइनिंग हो गया। इसको मेक श्योर करें कि आप उसको अच्छी तरह से वहां पर हर पेज में ना सही लेकिन रेगुलर इंटरवल में आपको वहां पर डिजाइनिंग करना बहुत जरूरी है। Then we move to the ninth step of this process, which is ordering of your proof copy. एक बार आप कंप्लीट करते हैं सारा कुछ आपने लिखा हुआ, डिजाइनिंग पार्ट, कवर पार्ट एंड जो भी बुक का कंटेंट है उसका इलस्ट्रेशन, then you need to recheck in the hard copy. सो आपको ऑथर कॉपी ऑर्डर करना जरूरी है। जहाँ से भी आप पब्लिश करने के लिए सोच रहे हैं, वेदर यू वांटेड टू पब्लिश थ्रू एन पब्लिशर और यू वांटेड टू पब्लिश थ्रू ऑनलाइन साइट्स, सो वहाँ से आपको, और आप अगर चाहे तो आप एक हार्ड कॉपी, प्रिंट आउट कॉपी निकाल के भी उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपको छोटी चीज़ों को भी वहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ पर कोई भी मिस्टेक ना रहे, कोई भी एरर ना रहे, ताकि आपका बैड इंप्रेशन नहीं पड़ेगा आपके रीडर के ऊपर। तो इसको आपको मेक श्योर करना है, और आपके जो भी प्रूफ कॉपी है उसको पहले ही लेके आपको ईच एंड एवरीथिंग चेक करना है बिफोर यू पब्लिश योर कॉपी in the public. Then next and final step is publish your book. अब पब्लिश आप एक पब्लिशर से भी करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन फ्री में पब्लिश करवाना चाहते हैं तो यू कैन गो विद द अमेजॉन KDP, यू जस्ट सर्च इट आउट ऑन गूगल, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को फॉलो कीजिए, देन यू विल गेट एन इंस्ट्रक्शन दैट हाउ यू कैन पब्लिश योर होल कॉपी, हाउ यू नीड टू अपलोड योर कॉपी। आपको वहाँ पर सारा कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेगा। यहाँ पर मैं आज उस चीज़ को नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सो आप वहाँ से भी अमेजॉन से भी फ्री में पब्लिश करवा सकते हैं और अपने बुक को अमेजॉन में लिस्ट करवा सकते हैं और वहाँ से आप सेल करवा सकते हैं। So these are my 10 steps. By following these 10 steps, I have successfully completed my book and published my book on Amazon, and I become a successful bestseller on Amazon within a short span of time. So these are the 10-step formula. If you will follow this 10-step formula, definitely you will also be able to publish your own book. I have followed the same exact 10-step formula, and I have completed my book. Not only I have completed my book, I have published my book on Amazon, and I become the bestseller on Amazon as well. So if this video has given you some value, then don't forget to hit like button. This will definitely boost my motivation to make this sort of videos again and again for you. And don't forget to subscribe my channel so that you will get a notification every time whenever I release a video like this.